Hello everyone, how you guys are doing? I welcome you to the chapter 2 of quantitative aptitude series. As you know, this series we have started for developing problem solving skills in you. If you are in class 8 to 10, this is the right time to develop this skill. Now, as you know, in chapter 1 we discussed the proportionality, how things grow with respect to other. Like if one quantity goes up, the other quantity goes up as well. That means they are in direct proportion. If one quantity goes up and the other quantity goes down, they are in inverse proportion. As you know, we started with a very moderate question, very easy question. Then slowly we increased the level of the question, and the level of the question was gradually increasing from question number 1 to question number 10. The how we were developing the difficulty level, we were developing the difficulty level by increasing the information, giving you more information by using complicated language, using 2 3 4 parameters at the same time. That is what you were supposed to develop. That if you are bombarded with information, you can handle yourself, you can keep yourself cool, and at the same time you can remain objective when you are attacking the problem. Means you can figure out exactly what is given in the question, you can figure out what exactly is being asked and what exactly it needs to develop the bridge. I was very much, I felt so fantastic to receive one student from Urai, Master Karthik from class 10th. He was so fast, the moment the lecture was over, within 30 minutes of the lecture, I received his assignment. All questions were absolutely correct. His problem solving skill was so good. I was so impressed. Like within 30 minutes of span, he sent all the questions, and absolutely all the questions were 100% correct. आई होप आप लोग भी इस तरीके से कार्तिक से सीखें एंड यू रियली गेट इनटू द that winning attitude. At the same time, I'm telling you, many students are thinking that after the lockdown they will resume study. That is not a good approach, because everyone across the globe, I'm not talking about only India, across the globe, people are very aggressive in their academics. They haven't stopped their academics just because they are facing lockdown. Because when you are facing lockdown, this is the best time to focus more on studies, because studies is something which needs isolation. Study is something which needs cut off from the world, and this is what it's required right now. That if you are getting locked down at your home, it means it's the time to put all your energy to academics, to your physical health, to your hobbies. So you cannot say that I'm having a vacation time right now, or let's say I'm like in the stress and only when the lockdown gets over, I'll get back to study. I'm telling you, the moment lockdown gets over, you will be bombarded with the syllabus you have to cover. So you cannot afford to compile all those things for lockdown to get over, because students across the country, across the globe, they are very aggressive in every assignments, in every video lecture. So you have to be very serious. Okay, now coming back to the chapter 2, one more thing I would like to add. We have developed a checklist for each mentor would be calling their mentees to see that whether the students have finished their video lectures or not, whether they have submitted their assignments or not. So if they are like in mathematics, you have 2 3 lectures. If it has been scheduled, then have you watched it? If physics, 2 3 lectures have been scheduled, have you watched it? In chemistry, in biology, have you watched it? And the assignments, like if there are 4 assignments for mathematics, 4 assignments for physics, 3 assignments for chemistry, have you really finished those assignments? These are going to be checked, these are going to be looked at. So you cannot be casual that okay, it's okay, nobody's there to see, because mentors would be developing the checklist. At the same time, it's not only about accountability, because we are planning a test also, because we have finished first chapter of almost each subject in each class. So we are planning a test of 1 hour for each subject in the coming week, and in that the syllabus would be coming directly from the video lecture. So if you are not attending the video lecture, if you are not solving the assignment, you are going to be in big trouble for those tests. So you have to be very serious, and I'm telling you, I'm repeatedly telling you, don't wait for lockdown to get over to start or resume your study. It's the right time to resume your study, to get excellent in. And students who are watching, I have great respect for them, because they are
on their toe and they want something fantastic in their academic life, in their personal life, in their professional life. So that is why I'm repeatedly telling you, please get back to your studies, because it's the right time to resume your study and excel in all the areas. The areas where you are strong, you can bring perfection to it. The areas where you are weak, you can get good at it. So you cannot ignore anything right now. It's the right time to focus your energy in your academic health, in your mental health, in your physical health, and in your hobbies. Okay. Now, beginning in, as you know, chapter 2, we are going to do the counting of number of factors. Like if I have 12, can I count the number of factors? Okay, 1 divides 12, 2 divides 12, 3 divides 12, 4 divides 12, 6 divides 12, 12 divides 12. So I can say 6 factors are there in 12. So if I give you the number 12 and ask you how many factors are in 12, you say 6, because you can easily count on your fingers. At the same time, if I give you 24, you can count. If I give you 48, again you can count. But if I give you 24,000, if I give you 48,000, if I give you 48,024, it gets little difficult. It gets like not easy to count on fingers. So you cannot count everything on fingers. So for that, in mathematics, we develop a principle of counting. And what is that principle of counting? We have basically two principles of counting. One principle is principle of addition. The other principle is principle of multiplication. Now the question is, when we are counting, when do we have to multiply and when do we have to add? Let's say I'll give you two examples so that it differentiates. Let's say if you have like you want to wear a shirt, and when you open the cupboard, you saw 5 long sleeve shirts. What you saw? 5 long sleeve shirts and 3 short sleeve shirts. So in your cupboard, you have 5 long sleeve shirts and 3 short sleeve shirts. So how you're going to wear? How many options you have to wear the shirt? So you are going to wear either long sleeve or short sleeve. So you have 5 plus 3, 8 choices. So you simply added. What you did, you simply added that, okay, I'm going to wear the long sleeve or short sleeve. So 5 plus 3, 8. Okay, now I'll give you the second scenario. Let's say if you open the cupboard and you see that you have 5 shirts and 3 trousers. 5 shirts and 3 trousers, because shirt and trousers are worn in pair. You cannot wear one of them. You have to wear shirt as well as pant. You cannot wear long sleeve and short sleeve. So you chose either short sleeve or short sleeve. But in pants, you have to wear both shirt and pant. So you have 5 shirts and 3 pants. So how many options you have to wear? So let's say you have 5 color shirts: white, black, blue, yellow, orange. So you have 5 shirts, and then you have 3 trousers. So if I say white shirt, you can wear 3 trousers. You have 3 options of trousers with 1 white shirt. With 1 black shirt, you have 3 trousers, 3 options of trousers. With blue shirts, again you have 3 trousers. So you can say, sir, I can wear in 15 ways. So what you did, you multiplied in the second case. Where did you add? When you had either long sleeve or short sleeve. Either long sleeve or short sleeve, you added. And when shirts and trousers, what you did? You multiplied. So I'll just introduce the principle of sum. I'll just squeeze my screen so that you can have a better look at the slides. Let's say, so I'm just telling you the rule of counting. So basically you have 2 rules. One is, as I have told you, rule of sum, and then you have rule of product. Now the question is, when you have to use the rule of sum and when you have to rule it. So you saw 5 long sleeve shirts and 3 short sleeve shirts. So you know, when you have to wear a shirt, either you are going to wear long sleeve or short sleeve. So you either you are going to wear one of the two, either long sleeve or short sleeve. So what you did, you add 5 plus 3. Now you have 5 shirts and 3 trousers. What you did, you are going to wear 1 shirt with one of the 3 trousers, then another shirt with one of the 3 trousers. So you have basically 5 into 3. So when and was there, you multiplied. When or was there, you added. I'll take one more example. Let's say you are in city A and you have to go to city C. You are in city A and you have to go to city C. Now city A to B connects 2 roads. City A to B connects 2 roads. Just a second. And city B to C connects 3 roads. Now if I ask you, that your car is at city A
and now you want to go from city A to city C. How many ways you have? Now let's see. You can go with this path and then one, right? You can see this, your car. You can go this and then this, right? Then you can go this and this, 3. Then you can go this and this, right? Similarly, you can go this and this. Similarly, you can go this and this, and then similarly you can go this and this. So what you did? Basically, in how many ways you wish? I'll just do it slowly so that you can see clearly. Then okay, I am going to choose first road, then first road of B to C, one way. Then I'm going to choose first road, then the second road B to C. Then I'm going to choose first road and the third road to B to C. So you followed 3 paths. Similarly, I'll choose the second road and the first road. Then second road and the second road. Then second road and the third road. So how many ways you went from A to C? You took 6 ways. So what you did? You went from A to B and B to C. So A to B जाने का आपके पास 2 रास्ता था, B to C जाने का आपको 3 रास्ता था. आपने क्या किया? 2 into 3. Now let's say you have a flying option as well. Now let's say either you are going to take a roadway or airway. Roadway or airway. So either, just a sec. So you are going to take either roadway or airway. Now roadway you have 6 choices, or airway you have 1 choice. So what you did? 6 plus 1, 7. So here what you did? You added. So you understood where you are adding and where you are multiplying. So I'll just clarify. Rule of sum. When do we add? When you have or word, or when things are in cases, or you have things are in cases. So when you have in scenarios of or cases, you do add. And when do you do the multiplication? Rule of product. When you have and word or stages, like I'm going to wear shirt and pant, or shirt is the first stage, pant is the second stage. Similarly, I have to go from A to B and B to C. So A to B is first stage and B to C is second stage. So when you have and, you multiply. When you have or, you add. So when you have cases, you add. When you break things in stages, you multiply. This is the rule. I'll take one more example. Let's say, as you all know, Salman Khan, the superstar. Why I chose Salman Khan? Because Salman Khan is a person who sometimes do not wear shirt. Now let's say Salman Khan has to go out. When he opens his shirt cabin, so when he opens his shirts cabin, he sees 5 shirts. When he opens his trouser cabin, he sees 4 pair of trousers. And when he opened his hat cupboard, he saw 3 hats. Now Mr. Salman wants to go out. Now Salman wants to go out. How many choices Salman has? How many choices Salman has? Now I chose Salman Khan for a reason. Why? Because Salman Khan is a person who can go without shirt as well. He can go without shirt as well. So when he opens the shirt cabin, and then trouser cabin, and then hat cabin, so everything is in stages. And right? You understand what you mean by and? Now, how many shirts Salman can wear? How many options Salman has? Salman can wear one of the 5 shirt or no shirt. He can go without shirt as well. So he has 6 choices. How many choices he has? He has 6 choices when it comes to shirt. Because he can wear one of the 5 shirts or he can go without shirt. Now when it comes to trousers, how many choices he has? You cannot say 5 because he has to wear the trousers. So here he is going to wear one of the 4 trousers. So he has 4 choices. And what about hat? Hat is something when he can choose or he cannot. So he can wear one of the 3 hats or he cannot wear a hat as well. So how many choices he has? 4. So 6 into 4 into 4.
That makes it 96. So in 96 ways, Mr. Salman Khan can go out. Now you must be thinking कि इसका नंबर ऑफ फैक्टर से क्या मतलब है. जैसे मैंने आपको बताया था 12. क्या बताया था? 12. और 12 का अपने फैक्टर्स क्या बताया था? 1 2 3 4 6 एंड 12. सो यू टोल्ड 6 फैक्टर्स आर देयर, राइट. आपने कहा था कि 6 फैक्टर्स आर देयर फॉर 12. ओके ग्रेट, आपने सही कहा था. लेकिन अब क्या हो रहा है कि 12 को जब मैं 1200 कर रहा हूं तो आप ऐसे काउंट नहीं कर पा रहे. तो पहले मैं 12 को देख लेता हूं. जब अगर मैं 12 को देखूं तो 12 का मैं प्राइम फैक्टराइज कर लेता हूं. क्या करता हूं? प्राइम फैक्टराइज. तो 12 का प्राइम फैक्टराइज करता हूं तो ये होता है. एवरीबडी नो हाउ टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. आप प्राइम फैक्टर से कर लो, ठीक है. अब मैं कह रहा हूं कि इसके जो भी फैक्टर होंगे उसका शक्ल होगा 2 to the power p into 3 to the power q. 2 to the power p into 3 to the power q. अब p की जो वैल्यू हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती, क्योंकि इसके जो फैक्टर है वो 2 के पावर 2 से कम होने चाहिए. और क्यूब क्या हो सकता है? 0 और 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता क्योंकि 3 स्क्वायर नहीं है. तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर मैं ऐसे देखूं तो इसके फैक्टर्स p के अगर 0 है तो ये भी 0 हो सकता है, अगर ये 0 है तो ये 1 हो सकता है, अगर ये ओके अगर ये 1 है तो 0 हो सकता है, ये अगर 1 है तो 1 हो सकता है, राइट. अगर ये 2 है तो ये 0 हो सकता है, और ये अगर 2 है तो ये 1 हो सकता है. तो ये चॉइसेस हमारे पास हैं. देखो कितने हैं? 2 to the power 0 into 3 to the power 0, 2 to the power 0 into 3 to the power 1, 2 to the power 1 into 3 to the power 0, 2 to the power 1 into 3 to the power 1, 2 to the power 2 into 3 to the power 0, 2 to the power 2 into 3 to the power 1. देखो क्या है? ये क्या होता है? ये 1 होता है. ये क्या होता है? ये 3 होता है. ये क्या होता है? ये 2 होता है. ये क्या होता है? ये 6 होता है. ये क्या होता है? ये 4 होता है. ये क्या होता है? ये 12 होता है. So this is how we see that okay, I know how many factors 12 has. It has 6. तो हमने क्या किया? एक बार तो हमने उंगली से काउंट करके देखा, उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ सम निकाला. तो हमने कहा कि जो फैक्टर होगा वो 2 to the power p into 3 to the power q होगा. p क्या हो सकता है? p 0 1 2 में कुछ भी हो सकता है, और q 0 1 में हो सकता है. तो p के पास कितने चॉइसेस है? p हैज 3 चॉइसेस, एंड q के पास कितने चॉइसेस है? 2 चॉइसेस. और दोनों एंड कंडीशन में, तो 3 into 2 6. तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते थे बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग. मैंने ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिखाया सो दैट यू अंडरस्टैंड द थ्योरी. जैसे मान लीजिए मैं इसको सबको क्लीन कर देता हूं, ठीक है. मान लीजिए आपको मैं नंबर देता हूं, लेट्स से 2 to the power 5 into 3 to the power 4 into 5 to the power 2. लेट्स से ये आपका एक नंबर है. ओके, नाउ आई वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर दिस नंबर. क्या जानना चाहता हूं मैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि ये जो भी नंबर है इसका मैं क्या कर सकता हूं? इसका प्राइम फैक्टर मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 to the power p into 3 to the power q into 5 to the power r. आपको पता है p क्या क्या चॉइस ले सकता है? p ले सकता है 0 to 5 कोई भी होल नंबर, q क्या ले सकता है? 0 to 4 कोई भी होल नंबर, r क्या ले सकता है? 0 to 2 कोई भी होल नंबर. तो p के पास कितने चॉइसेस हैं? p के पास 6 चॉइसेस है. q के पास कितने चॉइसेस हैं? q के पास 5 चॉइसेस हैं. r के पास कितने चॉइसेस? 3 चॉइसेस हैं. तो आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 6 into 5 into 3, दैट इज 90. आप ऐसे भी देख सकते थे. आप अगर टेबल बना लेते p का, q का और r का. p 0 to 5 कोई भी नंबर ले सकता था तो इट हैज 6 चॉइसेस. q 0 to 4 कोई भी चॉइस ले सकता था, 5 चॉइसेस. r 0 से 2 कुछ भी ले सकता था. तो क्या हो गया? 6 into 5 into 3, दैट मेक्स इट 90. ओके, अब मैं इस क्वेश्चन में वेरिएशन ला रहा हूं. आपसे जब पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आपने कहा 6 into 5 into 3. अब मैं जानना चाह रहा हूं कि इसके इवन फैक्टर्स कितने होंगे. कितने फैक्टर्स? इवन फैक्टर्स. अब आपको यह समझना होगा कि इवन का मतलब क्या होता है.
इवन का मतलब होता है कि वो सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हैं, किससे? 2 से डिविजिबल हैं। तो मतलब अगर 2 है तो इवन हो जाएगा, 2 नहीं है तो इवन नहीं होगा। तो मतलब 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 5। ये जो मेरे पास 6 चॉइसेस थी, इसमें कौन सा चॉइस अगर होगा तो इवन नहीं होगा? ये चॉइस। तो मुझे ये चॉइस हटा देना होगा, मुझे ये चॉइस हटा देना होगा। तो मेरे पास कितने कितने चॉइस बचे? 5। तो पी के लिए मेरे पास कितने चॉइस बचे? 5। अगर मैं पूछूं कि क्यू के लिए कितना चॉइस है, तो 3 पे इवन ऑड फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं क्या कहूंगा? 3 के लिए कोई चेंज नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी 5। और 5 से भी इवन ऑड का फर्क, इवन का फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं इसको क्या कहूंगा? 3। तो क्या हो गया? 75। ये हो गया 90 फैक्टर्स और 75 कितने हो गए? इवन फैक्टर्स। ठीक है। 2 सवाल आपसे कोई पूछेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, आप बड़े आराम से बता दोगे। आपसे कोई पूछेगा इवन फैक्टर्स, वो भी आप बड़े आराम से बता दोगे। अब क्वेश्चन कोई पूछता है कि ऑड फैक्टर्स बताओ, कितने? ऑड फैक्टर्स कितने हैं? अब ऑड फैक्टर मतलब क्या होता है कि वो नंबर जिसमें 2 का मल्टीपल ना हो, 2 का मल्टीपल ना हो। तो मतलब 2 टू द पावर 0 इज द ओनली चॉइस फॉर ऑड। उसके अलावा बाकी सब आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 ये सब नहीं हो सकते। तो आपके पास पी के लिए कितना चॉइस है? 1, क्यू के लिए 5, आर के लिए 3। तो कितना हो गया? 15 ऑड फैक्टर्स। आप ऐसे भी देख सकते थे कि 90 टोटल फैक्टर्स है तो 75 इन फैक्टर्स है, तो टोटल ऑड फैक्टर्स कितने होंगे? 90 माइनस 75 दैट इज 15। यहां तक तो स्टोरी आपको समझ में आ गई कि आपसे कोई पूछेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आप फैक्टराइज करके आप बता सकते हो पहला प्राइम नंबर के पास कितने चॉइसेस है, दूसरे प्राइम नंबर के पास कितने चॉइसेस है, तीसरे प्राइम नंबर के पास कितने चॉइसेस है। अगर 4 प्राइम है तो चौथे प्राइम नंबर के पास कितने चॉइसेस है, और उन सारे चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दोगे। आपसे कोई पूछेगा इवन फैक्टर्स बताओ, तो आप क्या करोगे? आप 2 टू द पावर 0 का चॉइस हटा दोगे। तो मतलब जितने भी 2 के पावर हैं वो सारे एक्सेप्टेबल होंगे, लेकिन 2 टू द पावर 0 एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑड फैक्टर कितने होंगे, तो आप बोलोगे कि 2 टू द पावर 0 इज द ओनली चॉइस फॉर 2। उसके अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। तो इस तरीके से आप इवन ऑड बता सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट से मैं बात करूंगा। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मुझे जानना है ये जो फैक्टर है, ये जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, इसमें मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं? मल्टीपल ऑफ 3 फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब होता है, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब होता है कि मुझे 3 की पावर चाहिए। क्या चाहिए? 3 की पावर चाहिए। अब 3 की पावर 0 से काम नहीं चलेगा, 3 की पावर 0 से काम नहीं चलेगा। मुझे 3 की पावर 1 चाहिए, 3 की पावर 2 चाहिए, 3 की पावर 3 चाहिए, 3 की पावर 4 चाहिए, लेकिन 3 की पावर 0 नहीं चाहिए। 3 की पावर 0 मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए 3 की पावर 1 या 3 की पावर 2 या 3 की पावर 3 या 3 की पावर 4। 2 पे फर्क अब नहीं पड़ेगा, 2 पे फर्क अब नहीं पड़ेगा। तो आप बताइए मेरे पास कितने चॉइसेस हैं? आपको पता है 2 पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 के पास अभी भी 6 चॉइसेस है, 2 टू द पावर 0 से 2 टू द पावर 5। 3 के पास अब सिर्फ 4 चॉइसेस है, क्योंकि 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 0 आउट हो चुका है। और 5 के पास अभी भी 3 चॉइसेस है। तो कितने फैक्टर्स हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 3? तो आप बता सकते हो 6 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज गोइंग टू बी 72। अगर आपसे कोई पूछता है कि अच्छा ठीक है बताओ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, अब मतलब क्या है कि ना 2 पे कहानी डिपेंड कर रही है, ना 3 पे कहानी डिपेंड कर रही है, कहानी डिपेंड कर रही है 5 पे। तो 2 पे कितनी चॉइसेस है? 2 के पास अभी भी 6 चॉइसेस है। 3 के पास कितने चॉइसेस? 3 के पास 5 चॉइसेस हो गए कि 3 टू द पावर 0 से 3 टू द पावर 4। और 5 के पास सिर्फ 2 चॉइसेस है, क्योंकि 5 टू द पावर 0 अब हट चुका है। तो अब कितने हो गए? 5 इंटू 2 इंटू 6 दैट इज 60। तो आपसे कोई पूछा व्हाट इज द मल्टीपल, हाउ मेनी फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3, आपने 72 बता दिया। अगर आपसे पूछा कि हाउ मेनी फैक्टर्स विच हैव द मल्टीपल ऑफ 5, तो आपने 60 बता दिया। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन में और वेरिएशन ला रहा हूं। अब आपसे कोई पूछता है कि बताओ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। क्या है? 3 एंड 5 मतलब 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए। मतलब ना 3 टू द पावर 0 एक्सेप्टेबल है और ना ही 5 टू द पावर 0 एक्सेप्टेबल है। मतलब दोनों चीजें 3 की पावर होनी चाहिए और 5 की पावर भी होनी चाहिए। तो अगेन P के पास अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 6 ही रहेगा। इसके पास 4 रहेगा क्योंकि 3 की पावर 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड कंडीशन में 5 का पावर 0 भी एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, तो इसके पास भी 2 ही ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 948 फैक्टर्स।
विच आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। ठीक है, तो अब आपसे कहानी यहां तक आपको समझ में आ गई। आपसे कोई पूछेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, आप बता दोगे, इवन बता दोगे, ऑड बता दोगे, मल्टीपल ऑफ 3 बता दोगे, मल्टीपल ऑफ 5 बता दोगे, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 बता दोगे। अब क्वेश्चन का सबसे डिफिकल्ट पार्ट आ रहा है, वो है 3 और 5। मतलब आपको जानना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 और 5। अब आपको यह पता होगा कि मैंने मल्टीपल ऑफ 3 निकाला था। मल्टीपल ऑफ 3 का आंसर क्या आया था? मल्टीपल ऑफ 3 का आंसर आया था 6 इंटू 4 इंटू 3। और मल्टीपल ऑफ 5 का आंसर क्या आया था? 6 इंटू 5 इंटू 2। तो इसका आंसर आया था 72 और इसका आंसर आया था 60। राइट, आपको याद होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर ईदर मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो आपका मन कर रहा होगा ऐड कर देने का 672 प्लस 60। लेकिन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको याद होगा वो कितने थे? वो 90 थे। तो 72 प्लस 60 132 हो गया है। तो ये इतना एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? ये इतना एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? इसको कहते हैं डबल काउंटिंग। इसको क्या कहते हैं? डबल काउंटिंग। देखो मैं क्या कहता हूँ, देखो जैसे मान लो क्लास में कितने बच्चे हैं? देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21। मान लो क्लास में 21 बच्चे हैं। 21 बच्चों में ये बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ये बच्चे कितने क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। और ये बच्चे हॉकी खेलते हैं। मतलब कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं? देखो 15 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। और कितने बच्चे हॉकी खेलते हैं? देखो 12 बच्चे हॉकी खेलते हैं। तो बचाओ टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं? तो आप बोलोगे 15 प्लस 12 27। लेकिन देखो क्लास में कितने बच्चे हैं? 3 5 21। तो ये 6 बच्चे कहाँ से एक्स्ट्रा आ गए? ये 6 बच्चे एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए? वो ये बच्चे हो गए जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। क्रिकेट एंड हॉकी दोनों खेलते हैं। वो क्या हो गया उनके साथ? उनके साथ डबल काउंटिंग हो गई। वो 2 बार ऐड हो गए। क्या हो गए? वो 2 बार ऐड हो गए। अब डबल काउंटिंग होगी तो उसको कैसे हैंडल करें? अभी देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे। तो जो डबल काउंटिंग हो गई उनको एक बार फिर से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मैंने क्या किया, बच्चे जो क्रिकेट खेलते थे प्लस बच्चे जो हॉकी खेलते थे माइनस बच्चे जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते थे, तो क्या हो गया? 21। अब सही हो गया है कि नहीं? तो सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 और 5, तो आप क्या बोलोगे? मल्टीपल ऑफ 3 प्लस मल्टीपल ऑफ 5 माइनस मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। समझ में आएगी कहानी? मतलब आपने पहले मल्टीपल ऑफ 3 लिया, टोटल मल्टीपल ऑफ 3 कितने थे? 72। आपने लिया मल्टीपल ऑफ 5, टोटल कितने थे? 62। तो आपको ये पता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे मल्टीपल हैं जो 3 के भी मल्टीपल हैं और 5 के भी मल्टीपल हैं जो 2 बार काउंट हो गए हैं। और वो कितने हैं? वो हैं 48। तो 48 माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो गया? 132 माइनस 48 विच मेक्स इट 84। तो मैं कह सकता हूं द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 और 5 दे आर 84। ओके, नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम। अब एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सम की भी बात करेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, आपसे कहा जा रहा है फॉर द नंबर 2450। नंबर क्या है? 2450। आपको इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। अभी हमने सम निकालना नहीं सीखा, अभी हम सम निकालना सीखेंगे। या तो अभी सीखेंगे अगर हमें टाइम मिला, नहीं तो हम चैप्टर 3 में सम निकालना सीखेंगे। ओके, क्योंकि सम निकालने के लिए आपको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट जानना होता है। वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा अभी चैप्टर 3 में, या अगर अभी मुझे टाइम मिला तो अभी समझा दूंगा। अभी मैं आपको हिंट दे दूंगा जो बच्चे समझ पाएंगे। ठीक है, अब ये जो 2450 है, अब 2450 के लिए मुझे क्या करना होगा? 2450 के लिए मुझे इसको सबसे पहले मुझे प्राइम फैक्टराइज करना होगा। इसका मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। तो 2450 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालूंगा? सिंपली एलसीएम करके। तो ये क्या हो गया? 1225। नाउ आई कैन सी दैट 5 से कर सकते हूं।
ओके, फिर 5 से तो ये हो गया 49, फिर 7 से 7, तो क्या हो गया, ये सिंपल सी बात हो गई, 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो इसका जो भी फैक्टर होगा उसकी शक्ल क्या होगी, 2 टू द पावर p, 2 की पावर p इंटू 5 की पावर q इंटू 7 की पावर r। अब देखिए p, q और r के पास चॉइसेस कितने हैं। p के पास आप लोगों को पता है 0 या 1, सो यू हैव ओनली 2 चॉइसेस। q के पास कितने चॉइसेस हैं, q के पास 0 1 2 मतलब 3 चॉइसेस हैं, और 7 के पास कितने, r के पास कितने चॉइसेस हैं, 0 1 2 3, तो टोटल फैक्टर्स कितने होंगे 18। तो आपसे कोई पूछता है टोटल नंबर फैक्टर्स, आप बताओगे 18। सम हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। सेकंड में आ जाइए, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आपसे पूछता है। अगेन आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 2 टू द पावर 1 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब इवन के लिए आपको क्या है, 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 में इसको आउट कर देना है। तो p, q और r के लिए आपके पास चॉइसेस कितने बच गए, p के लिए सिर्फ 1 चॉइस बचा, q के लिए अभी भी 3 चॉइस है, r के लिए भी 3 चॉइस है, 9। तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हो गए, 9। सेम क्वेश्चन है 2450। अब क्या पूछ रहा है, अगेन अभी मैं नंबर कर रहा हूं, नेक्स्ट सीरीज में मैं सम बताऊंगा आपको जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर मतलब 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 में ये नहीं एक्सेप्टेबल है। तो p, q और r के लिए p के पास 1 ही चॉइस है, q के पास 3 चॉइस है, तो कितने हो गए 3 इंटू 3 इंटू 1 दैट इज 9। सो 9 ऑड फैक्टर्स, 9 इवन फैक्टर्स, और टोटल फैक्टर्स कितने हो गए 18। आप अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। ओके, नाउ अगेन मैं ये बार बार मुझे ये लेना पड़ रहा है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको फैक्टराइज ऑलरेडी कर रखा है। अब मुझे पूछना है नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 5, मतलब मुझे अब 5 टू द पावर 0 5 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 2 में ये नहीं चाहिए, डिविजिबल बाय 5 चाहिए। तो p, q, r में आपको पता है p के पास 2 चॉइसेस है, q के पास 2 चॉइसेस है और r के पास 3 चॉइसेस है। तो 12 फैक्टर्स आर देयर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब आपसे पूछ रहा है 35, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 35, मतलब 5 टू द पावर 1 और 7 टू द पावर 1 मिनिमम चाहिए, मतलब 5 टू द पावर 0 नॉट रिक्वायर्ड एंड 7 टू द पावर 0 नॉट रिक्वायर्ड। अब देखिए p, q, r, p पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अभी भी 2 चॉइसेस। अब मुझे 5 टू द पावर 0 नहीं चाहिए, तो मतलब q के पास 2 चॉइसेस, और 7 टू द पावर 0 नहीं चाहिए, मतलब इसके पास भी 2 चॉइसेस। कितने हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मेक्स इट 8 फैक्टर्स। सिमिलरली अब क्या है, आपको 245 चाहिए। 245 का मतलब क्या, फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाय 245, मतलब 5 टू द पावर 1 और 7 स्क्वायर, ये तो चाहिए 5 टू द पावर 1 और 7 स्क्वायर, मतलब 7 टू द पावर 1 और 7 टू द पावर 0 नहीं चाहिए, और 5 टू द पावर 0 नहीं चाहिए, 5 टू द पावर 2 चलेगा, क्योंकि 5 टू द पावर 1 होना चाहिए, 5 टू द पावर 2 है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो p के पास अभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो p के पास अभी भी 2 चॉइसेस है, q के पास अभी भी 2 चॉइसेस है, 5 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 2 2 चॉइसेस, एंड r के पास सिर्फ एक ही चॉइस है, दैट इज 1। सो आंसर इज 4। ओके, अब आ जाइए, नया नंबर आ गया है 7200। क्या आ गया है 7200। 7200 को फैक्टराइज आप कैसे करोगे, 2 ये तो हो गया 72 इंटू 10 स्क्वायर, राइट। अब इसको फर्दर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे फैक्टराइज प्राइम नंबर्स में चाहिए, तो ये हो गया 2 स्क्वायर और ये हो गया 5 स्क्वायर, which makes it 2 to the power 5 into 3 square into 5 square. So prime factorization क्या हुआ, 2 to the power 5 into 3 square into 5 square. तो p, q और r, p के पास कितने चॉइसेस 6, q के पास कितने चॉइसेस हैं 3, और r के पास कितने चॉइसेस हैं 3। सो आंसर इज 54। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है, आप इसका ये आंसर दे सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है इवन फैक्टर। इवन फैक्टर के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पता है इवन फैक्टर के लिए 2 to the power 0 इज नाउ नॉट एक्सेप्टेबल, तो इट हैज 5 चॉइसेस, इट हैज 3 चॉइसेस, इट हैज 3 चॉइसेस, दैट मेक्स इट 45। अब आपसे ऑड पूछ रहा है, ऑड मतलब सिर्फ 2 to the power 0 इज एक्सेप्टेबल, सिर्फ 2 to the power 0 एक्सेप्टेबल, तो p के पास 1 चॉइस है, इसके पास 3, इसके पास 3, क्या हो गया 9।
अब देख रहे हैं एक बार जब आ जा रहा है तो आप सॉल्व करना कितना आसान हो जा रहा है। अब 70 अगेन 7200 सेम नंबर है। अब क्या चाहिए, फैक्टर डिविजिबल बाई 5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर चाहिए। तो मतलब 5 टू द पावर 1 0 और 5 टू द पावर 1 नॉट एक्सेप्टेबल। तो आर के पास सिर्फ एक ही चॉइसेस है, क्यू के पास अभी भी 3 चॉइसेस हैं और टू के पास अभी भी 6 चॉइसेस। तो कितने हो गए 18। ओके अब देखिए क्या कह रहा है, नंबर डिविजिबल बाई 40 मतलब 2 क्यूब और 5। तो मतलब 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 2 ये तीन एक्सेप्टेबल नहीं, उसके बाद सारे एक्सेप्टेबल हैं। तो मतलब इट हैज़ 3 चॉइसेस, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 5। 3 को फर्क नहीं पड़ता है, 3 के पास अभी भी 3 चॉइसेस हैं। 3 के पास अभी, क्यू के पास अभी भी 3 चॉइसेस हैं। और आर को 5 टू द पावर 1 चाहिए और 5 टू द पावर 2 चाहिए, दोनों चलेगा। 5 टू द पावर 0 नहीं चलेगा, तो 5 टू द पावर 0 हट गया तो क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 2। सिमिलरली अब देखिए क्या है 150, 150 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। तो मतलब 2 की पावर 0 इज आउट, 3 की पावर 0 इज आउट, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 आउट। तो मतलब P के पास 6 में से सिर्फ एक ही चॉइस आउट हो गया 5, Q के पास एक चॉइस आउट हो चुका है 2 और R के पास 2 चॉइस आउट हो चुका है दैट इज 1। तो आपके पास कितने नंबर है जो डिवीजन है 5 टू 10। सिमिलरली आपके पास अब नंबर है 75। 75 का मतलब क्या हुआ 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर। मतलब 3 की पावर 0 इज आउट एंड 5 की पावर 0 एंड 5 की पावर 1 इज आउट। तो मतलब P के पास कोई दिक्कत नहीं है 6, Q के पास एक चॉइस खत्म हो गई दैट इज 2 रहा और R के पास टोटल 3 चॉइसेस थे जिसमें से 2 आउट हो चुका है तो बचा एक, तो कितना हो गया 12। अब देखिए 7200 के लिए क्या कह रहा है, आपको अब समझ में आ गया होगा 24 मतलब 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1। तो मतलब कितनी चीज़ आउट हो गई 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1 एंड 2 टू पावर 2, ये 3 चॉइसेस आउट हो गई हैं। तो 6 माइनस 3 3 चॉइसेस, इसके लिए 3 टू पावर 0 चीज़ आउट हो चुकी है। तो इसके पास कितने चॉइसेस बचे, इसके पास 2 चॉइसेस बचे और आर को कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसके पास 3 चॉइसेस 18। ओके नाउ हियर कम्स द न्यू क्वेश्चन 1728। जैसा कि आपको पता है 1728 इज 12 का क्यूब। 12 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 का क्यूब which means 2 to the power 6 into 3 की power cube. Now this is the prime factorization of 1728. अब 1728 का टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स या फैक्टर्स पूछा गया है। तो आपको पता है इसका क्या होगा 2 to the power p इंटू 3 to the power q। अब p क्या हो सकता है और q क्या हो सकता है, p 0 से 6 कुछ भी हो सकता है तो 7 ऑप्शन, और 3 to the power 0 से 3 to the power 3 कुछ भी हो सकता है 4 ऑप्शन। तो 7 into 4 that is 28। ओके सिमिलरली आपसे पूछा जा रहा है 1080। अब 1080 को फैक्टराइज करना है तो 36 इंटू 30, 6 स्क्वायर इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर एंड 30 इज 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ 2 क्यूब 3 क्यूब 5 टू द पावर 1। ओके सो दिस इज बेसिकली 8 9 72, दिस इज लाइक 1080। Now you have to tell me the number of divisor of 10 excluding the divisor which are perfect square. सबसे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का निकाल लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, टोटल फैक्टर्स आपको पता है 2 to the power p इंटू 3 to the power q इंटू 5 to the power r। p के पास कितने चॉइसेस है 4, q के पास कितने चॉइसेस है 4 और r के पास कितने चॉइसेस हैं 2। तो टोटल फैक्टर तो हो गया 32। टोटल फैक्टर कितने हैं 32। अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर्स निकालने हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स निकालना है। तो अब देखो P Q R। अब देखो P का परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, 2 का पावर 0 हो सकता है या 2 का पावर 2 हो सकता है, और कोई परफेक्ट स्क्वायर तो हो नहीं सकता है क्योंकि 2 to the power 1 परफेक्ट स्क्वायर नहीं करेगा, 2 to the power 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं करेगा। Q के पास क्या क्या चॉइसेस है, Q के पास 3 to the power 0 और 3 to the power 2 चॉइसेस है क्योंकि 3 to the power 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकता है, 3 to the power 1 परफेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकता। R के पास क्या चॉइसेस है, R के पास सिर्फ एक चॉइस है 5 to the power 0। तो आप देखिए P के पास कितने चॉइसेस हैं 2, Q के पास कितने चॉइसेस हैं 2, P के पास 2, Q के पास 2 और R के पास कितने चॉइसेस है 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है 4। सो दे आर बेसिकली 4 फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। सो 32 माइनस 4 दैट मेक्स इट 28। सो द आंसर इज ए। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने क्या देखा,
हमने देखा कि फैक्टर्स का टोटल नंबर काउंट कैसे करते हैं। उसके बाद जो फैक्टर्स हैं उसको प्राइम नंबर से फिर कंपोजिट में भी ले जाना है, तो हमें चॉइसेस पिक करना आया। तो इसमें जो सबसे अच्छी चीज हमने सीखी वो सीखी कि रूल ऑफ काउंटिंग, कि काउंट कैसे किया जाता है। जब उंगली से चीजें काउंट हो जाती है तो छोटी चीजें होती है जो उंगली से काउंट हो जाती है, लेकिन अगर कोई बड़ी चीजें हैं जिनको काउंट करना है, विजुअलाइज करना है, तो आपको दो प्रिंसिपल यूज करने हैं, प्रिंसिपल ऑफ सम एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट। प्रिंसिपल ऑफ सम कब होता है? लॉन्ग स्लीव और शॉर्ट स्लीव, रोडवे और एयरवे, मतलब जब और ओ आर वर्ड आ जाता है, और या केसेस में कहानी आ जाती है कि या इस तरीके से काम होगा या तो उस तरीके से काम होगा, तो आप डिफरेंट केसेस, तो जब केसेस की कहानी होती है तो आप उसमें ऐड करते हो। और मल्टीप्लाई रूल ऑफ प्रोडक्ट कब करते हो? शर्ट एंड ट्राउजर, शर्ट एंड ट्राउजर एंड शूज, शर्ट एंड ट्राउजर एंड कोट, सिटी ए टू बी एंड बी टू सी, एयरवे एंड रोडवे, मतलब आपने फ्लाइट लिया फिर उसके बाद रोडवे, मतलब आप स्टेजेस में जब काम करते हैं एंड वर्ड जब होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। उसी दो कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने ये सारे फैक्टर्स डिवाइजर्स निकाले। नेक्स्ट चैप्टर 3 में हम देखेंगे इसको सम कैसे करते हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा लंबा सेशन हो गया है, आप लोग इसको भी, बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, 10th के बच्चे इसको बहुत अच्छे से ग्रास्प कर लेंगे, 11th के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगा, 8 9 के बच्चे को थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा कि सर क्या कह रहे हैं, लेकिन आप फिर से 2 से 3 बार सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूँ। आपके लिए असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आपके ड्राइव में भी सेव होगा। सबमिशन डेट 12 अप्रैल है, क्योंकि आज की डेट हो गई, आज क्या डेट है? आज हो गई 10th अप्रैल, तो डेफिनेटली क्या कहते हैं 11th, एक दिन मैं आपको और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 12th अप्रैल तक आपको ये असाइनमेंट सबमिट करना है। ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में ऑलरेडी होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं असाइनमेंट में जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो 17 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 से लेकर 16 तक जो हमने किया है उसे भी आपको सॉल्व करना होगा, और फिर 17 से 24 ये करके आपको ये 24 क्वेश्चंस हमें अच्छे से डिटेल से करके सॉल्व करके भेजना होगा, और एग्जैक्टली आपको प्रिंसिपल ऑफ सम और प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट से क्या समझ में आया है। आई होप आई हैव लाइक, आई एम श्योर यू गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क, और हम बहुत जल्दी चैप्टर 3 में आएंगे जिसमें हम फैक्टर्स को सम कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे। उसके लिए आपको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और सीरीज के बारे में बताएंगे। जो बच्चे 8 9th में होंगे उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप शांति होके ये मत समझे कि हायर क्लास है, बस कॉमन मैथ्स के दिमाग से आप सॉल्व करोगे तो आपको वो भी चीज़ समझ में आएगी। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय।